Assalamu alaikum students. I'm your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are quite safe. So students, let's start our lecture of class 6. Please open your books from page number 23. Dear students, today we are going to start a very good and nice poem, The Old Brown Horse. Students, this is also the title page of your book. So I'm sure you will enjoy this poem. First of all, let's discuss the words to know. Had my day, my best days are past. मेरे अच्छे दिन गुजर चुके हैं. Mane, long hair on the head and neck of a horse. This is the mane of the horse. Long hair on the head or neck of a horse. Topmost bar, top bar. Very tired. Old और sad को भी कह सकते हैं. So students, let's start our reading. This is a very nice poem written by W.F. Holmes. The old brown horse looks over the fence. In a weary sort of way, he seems to be saying to all who pass, "Well, folks, I have had my day. I am simply watching the world go by, and nobody seems to mind as they are dashing past in their motor cars a horse who is lame and half blind." Students, please underline the difficult words and write down their meanings. Fence means barrier. Weary means tired. Fox means people. Mind means remember. Dashing past means moving fast. Lame means unable to walk. Old brown horse इस फेंस में, इस बैरियर में है और वो फेंस के ऊपर से बाहर गुजरते हुए लोगों को देख रहा है और वो उनसे कहता है कि मेरे अच्छे दिन गुजर चुके हैं, अब मैं सिर्फ अपने पास से गुजरते हुए लोगों को देखता हूँ, लेकिन किसी को भी मैं याद नहीं हूँ, कोई भी मेरे बारे में नहीं सोचता। वो मेरे पास से अपनी मोटर कार्स में बैठकर तेज़ी से गुजर जाते हैं और किसी को बिल्कुल कोई ख्याल नहीं है कि एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स है जो कि अब बूढ़ा हो चुका है और उसकी आई साइट भी वीक हो गई है और वो अब प्रॉपरली वॉक भी नहीं कर सकता, लेम हो चुका है वो हॉर्स. Students, as you can see in this picture, the horse looks tired and sad. We can guess that he is sad and weary. From the overall appearance of the horse is lame because his leg is wounded. Students, ये देखें, ये horse lame है क्योंकि यहाँ पे इसकी horse leg पे wound है, जख्म आया हुआ है. Therefore, he cannot walk properly. And students, you can also notice these rough patches over his skin. इसलिए स्टूडेंट्स हम बता सकते हैं कि ये हॉर्स बहुत ज़्यादा ओल्ड है और लेम है. The old brown horse has a shaggy coat, but once he was young and trim, and he used to trot through the woods and lanes with the man who was fond of him, but his master rides in a motor car, and it makes him feel quite sad when he thinks of the days that used to be and of all the times they had. Students, please underline the difficult words and write down their meanings. Shaggy coat means rough skin. Trim means neat and clean. Trot means run fast. Woods mean forest. Lanes means streets. Fond means like. So students, इस स्टैंजा में
पोइट हमें बताता है कि ओल्ड ब्राउन हॉर्स की अब स्किन बहुत रफ हो गई है, लेकिन कभी वो बहुत यंग हुआ करता था और नीट एंड क्लीन हुआ करता था, और वो फॉरेस्ट में या स्ट्रीट्स में अपने मास्टर के साथ, जिसको अपना ये हॉर्स बहुत पसंद था, उसके साथ जंगलों में और गलियों में तेज़ी से भागा करता था। लेकिन अब उसके मास्टर ने उस पर सवार होना छोड़ दिया है, उसकी बजाय वो मोटर कार में बैठता है और स्पीड से उसके पास से गुजर जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखकर वो हॉर्स बहुत ज़्यादा सैड फील करता है और उसको अपने ओल्डन एंड गोल्डन डेज याद आते हैं। समटाइम्स अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप near the fence where the tired old head rests wearily on the topmost bar, and a friendly word is said. Then the old brown horse gives a little sigh as he feels the kindly touch of a hand on his mane or his shaggy coat, and he doesn't mind so much. Underline the difficult words and write down the meanings. Soul means person, sigh means painful breath और साउंड ऑफ ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा में पोइट हमें बताता है कि लेकिन उस ओल्ड ब्राउन हॉर्स के पास कभी कभार कोई पासर बाय, कोई भी पर्सन आके रुक जाता है जब वो अपने इस केज में, इस बैरियर में बैठा होता है और उसने बहुत मायूसी के साथ अपना हेड जो है ये टॉप मोस्ट बार पे रखा होता है। और वो जब पासर बाई है, वो पर्सन जब भी कभी उस हॉर्स के पास रुकता है या उसको प्यार से टच करता है या उसके लिए कोई फ्रेंडली या लवेबल वर्ड यूज़ करता है, तो उस हॉर्स को बहुत अच्छा फील होता है। तो वो ब्राउन हॉर्स बहुत दुख के साथ आह भरता है, क्योंकि उसको अपने पिछले दिन याद आते हैं जब उसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया जाता था, उसका मास्टर उससे बहुत प्यार करता था, तो वो उन डेज़ को याद करके फिर सैड हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स, वो इस टच को बहुत इंजॉय करता है। जब कोई भी पर्सन उसकी मेन को या फिर उसके रफ स्किन को टच करता है, प्यार से उसको स्ट्रोक करता है, तो वो फिर उसको ये बात बहुत अच्छी लगती है, वो इस बात का माइंड बिल्कुल भी नहीं करता है। So, if you pass by the field one day, just stop for a word or two with the old brown horse who was once as young and as full of life as you. He'll love the touch of your soft young hand, and I know he'll seem to say, "Oh, thank you, friend, for the kindly thought for a horse who has had his day." And students, ये लास्ट स्टैंजा में पोइट रीडर्स को एक मैसेज देता है कि जब कभी भी आप इस तरह के ओल्ड हॉर्स के पास से गुजरें तो उसके पास रुकें, उससे बात करें, उससे प्यार करें, क्योंकि वो कभी उतना ही यंग था जितने के आज आप हैं, उतना ही वो लाइफ से फुल था जितने के आज आप हैं। और डेफिनेटली वो हॉर्स आपके उस स्वीट टच को, उस सॉफ्ट टच को एंजॉय करेगा और वो खुश होगा इस बात से कि कोई उसके पास रुका है उससे बात करने के लिए, और वो लाजमी आपका थैंकफुल होगा और वो बोलेगा, "थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम।" तो उसको अपने फिर वो यही सोचेगा कि ये पर्सन जो मेरे पास बैठा है ये कितना काइंड पर्सन है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर रीडिंग। ओवरऑल स्टूडेंट्स, ये पोइम एक ओल्ड ब्राउन हॉर्स के बारे में है, बट द हिडन मीनिंग ऑफ दिस पोइम इज़ टू डील and treat our old family members with great care and love because they need our attention when they are growing old. So students, हमें उनसे बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से बिहेव करना चाहिए, हमें उनको बहुत अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी वो यंग हुआ करते थे जब हम बच्चे थे, और अगर अब हम जवान हैं, हम यंग हैं, तो वो ओल्ड हो चुके हैं, तो लेकिन वो हमारे सबसे अच्छे बिहेवियर को डिज़र्व करते हैं। हमें अपने पेरेंट्स के पास बैठना चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठना चाहिए, और सो दैट स्टूडेंट्स वो अच्छा फील कर सकें और उनको अपने ओल्डन एंड गोल्डन डेज अच्छे वे में वो याद आए, ना कि वो सैड होके उन
डेज़ को याद करें कि अब हमारे बच्चे हमें बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं, वो हमारे पास से आराम से गुजर जाते हैं और हम अपने रूम्स में बैठे होते हैं, कोई हमारे पास नहीं आता है। तो बिल्कुल भी वो ऐसा फील ना करें। वी शुड गिव देम प्रॉपर टाइम एंड केयर। सो स्टूडेंट, दिस इज़ दी एंड ऑफ आवर लेसन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोइम अंडरस्टैंड होगी। प्लीज़ स्टूडेंट्स, do reading of this lesson by yourself. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.